So in last class, what we had done, we had started the material management. Okay. So in this, what we had done, we had defined the firstly we had defined the plant, then we had defined the storage location, then we had defined the purchase organization and purchase. After defining all these four configuration steps, what we've done, we had done the assignment part also. In assignment, we had assigned the plant to the company code. Then we had assigned the purchase organization to company code. Then we had assigned the purchase organization to plant, and then we had assigned a standard purchase organization to plant. After this, we had started the vendor master data. In vendor master data, we had already then these 4 टी कोड, ये जो 4 टी कोड्स हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एपी में करे थे, तो इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर आपने एपी नहीं करा हुआ है, सिर्फ जीएल के बाद आप डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हो अगर मटेरियल मैनेजमेंट, तो यू हैव टू कॉन्फ़िगर दिस 4 स्टेप, जिसमें हमको सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन द वेंडर ग्रुप, then we have to define the create number range, then we have to assign the number range to the vendor group, then next is we have to create the GL of Sunday creator, which will be under liability side, and we have to define the field stack group at G067. तो जब भी G067 होता है, we don't have to click on only balance in local currency. तो only balance in local currency पे टिक नहीं होगा, इसकी जगह पे रेको अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप में हमको वेंडर डिफाइन करना था। इतना डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट वी हैव डन दी क्रिएशन ऑफ वेंडर। तो फॉर द क्रिएशन ऑफ वेंडर वी हैड यूज्ड रिक्रूट एज XK01, और XK01 करके हम एक और वेंडर क्रिएट कर लेते हैं दोबारा। दो डिफरेंसेस मैंने बताए थे, एक हमने अभी तक की जो यूज करा था वो FK01 करा था। FK01 इज फॉर नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइसेस। नॉन पीओ मतलब नॉन परचेज ऑर्डर बेस्ड इनवॉइस, मतलब कि विच इज रिलेटेड टू सर्विसेज। जो अभी हमने एपी में करा हुआ है दैट इज रिलेटेड टू नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइसेस, मतलब कितने अमाउंट की सर्विसेज ले रहा है, कितना हमें पेमेंट करना है, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन होगी मेरे पास। कौन सा मटेरियल परचेज कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है नॉन पीओ बेस्ड। जहाँ पे मटेरियल और क्वांटिटी इन्वॉल्व होता है तो वो मेरा पीओ बेस्ड इनवॉइसेस होता है। ठीक। तो फॉर द क्रिएशन ऑफ वेंडर वी हैव टू यूज द डिकोड as XK01. XK01 is for the PO based invoices. So just entering this decode as XK01, enter. In vendor, we don't have to fill anything. It is asking for company code. So in company code, we are defining it as GD78, which is the company code in which we had done last configuration we had done in GD78 only. So company code is GD78, purchase organization GD78, and in account group we are defining it as GD78. So firstly we are defining the company code as GD78, purchase organization GD78, account group GD78. In vendor will be blank, reference will be blank. सीधे enter करेंगे। Here we have to select here as title and define the vendor name. I'm just defining any vendor name as J1 PVT LTD and just mention here as PO. PO is for purchase order based vendor. बेसिकली जब आप वेंडर सर्च करोगे तो वहाँ पे पीओ और नॉन पीओ बेस्ड वेंडर दोनों आएंगे। FK01 XK01 वाले दोनों डिस्प्ले होंगे, लेकिन हमको जो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा वो XK01 वाला सेलेक्ट करना होगा, दैट इज रिलेटेड टू पीओ बेस्ड वेंडर। तो इसलिए हमने यहाँ पे पीओ मेंशन कर दिया। ठीक। Then we are defining city as Lucknow, country will be IN for India, region के लिए we have to enter here as 24. So firstly we had selected here as company, then we had defined the vendor name, city as Lucknow, country as IN, region as 24. इतना फिल करने के बाद मेरे को 4 टाइम एंटर प्रेस करना होता है, तो 1 2 3 4। 4 टाइम एंटर प्रेस करेंगे, इट विल आस्क फॉर द रिकंसिलिएशन अकाउंट। इन रिकंसिलिएशन अकाउंट वी हैव टू डिफाइन हियर एज संदीप क्रिएटर। शॉर्ट की क्या होगा, शॉर्ट की 001 होगा, सेम एज पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग। एंड इन कैश मैनेजमेंट ग्रुप वी हैव टू डिफाइन इट एज A1। तो रिकंसिलिएशन अकाउंट वी हैव डिफाइन हियर एज संदीप क्रिएटर। शॉर्ट की क्या होगा, 001, कैश मैनेजमेंट ग्रुप A1। इतना फिल करने के बाद मेरे को 3 टाइम और एंटर प्रेस करना है, तो 1 2 3। 3 टाइम एंटर प्रेस करेंगे, इट विल आस्क फॉर द ऑर्डर करेंसी। तो इन ऑर्डर करेंसी वी हैव टू डिफाइन हियर एज INR फॉर इंडियन रूपी, एंड वी हैव टू क्लिक ऑन GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन। GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन क्या होता है, पहले अगर कोई भी स्टॉक आपको वेंडर से परचेस करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेंडर को परचेस ऑर्डर देते हैं। आफ्टर गिविंग द परचेस ऑर्डर वेंडर क्या करता है, गुड्स को डिलीवर कराएगा, तो वी हैव टू रिसीव द गुड्स फ्रॉम द वेंडर, देन वी हैव टू डू द इनवॉइसिंग। ठीक। तो ये क्या लिखा हुआ है, GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, मतलब GR मतलब जो भी गुड्स शिफ्ट हुआ है उसी के बेसिस पे इनवॉइसिंग करना, इनवॉइस वेरिफिकेशन करना। तो हियर वी हैव टू डिफाइन द ऑर्डर करेंसी एज INR एंड वी हैव टू क्लिक ऑन GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन कंट्रोल। जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे मेरा वेंडर क्रिएट हो जाएगा, वेंडर के अगेंस्ट में एक वेंडर कोड डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही दोबारा एंटर कर देते हैं। टाइटल कंपनी डिफाइन किया है J2 PVT LTD, देन वी आर डिफाइनिंग सिटी एज लखनऊ,
country as IN, and for India, the reason for UP it is 24. तो हमने यहाँ पे कंपनी का नेम डिफाइन करा, वेंडर का नेम, सिटी एज लखनऊ, कंट्री एज IN, सीजन एज 24। इतना फिल करने के बाद 4 टाइम एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, ऑलरेडी J2 PVT लिमिटेड से कोई अदर ऑलरेडी वेंडर बना हुआ है तो जस्ट डिफाइन हियर एज एनी नंबर और एनी सिंबल, एंटर। इन द कंसोलिडेशन अकाउंट वी आर डिफाइनिंग हियर एज संधि क्रिएटर, शॉर्ट की 001, कैश मिनिमम ग्रुप A1। इसके बाद भी 3 टाइम एंटर प्रेस करना है, 1 2 3। तो in here we have to define the order currency. We are defining order currency as INR, and we have to click on GR based invoice verification. GR मतलब goods based invoice verification पे टिक करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो ये मेरा वेंडर क्रिएट हो जाएगा। तो हमने 2 वेंडर क्रिएट करे, पहले एक वेंडर क्रिएट करा था, फिर हमने दूसरा वेंडर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जैसे ही मेरे 2 वेंडर क्रिएट हो जाएंगे, नेक्स्ट मेरा क्या आता है, मटेरियल मास्टर। तो दिस इज रिलेटेड टू मटेरियल। इन मटेरियल मास्टर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट द मटेरियल। हमको एक नया मटेरियल क्रिएट करना होगा जो भी वेंडर से हम परचेज करेंगे। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या प्रोसेस होता है, राइट। तो ये मेरा इसमें बेसिकली जो मेरा होता है, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक मटेरियल होता है कि अगर हमको वेंडर से किसी भी वेंडर से स्टॉक परचेज करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। कि सपोज अगर आपने कोई HP लैपटॉप या लेनोवो लैपटॉप, कोई भी लैपटॉप परचेज करना चाह रहे हो या कोई स्टॉक इन्वेंटरी परचेज करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करेंगे। क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मतलब RFQ क्रिएट करेंगे। RFQ मतलब कि हम पहले वेंडर के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, 2 या 3 वेंडर के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मेरे को इस फीचर्स का लैपटॉप चाहिए, प्लीज कंफर्म अस द प्राइसेस। तो पहला क्या होता है, क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इन क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन वी हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेंडर। वेंडर क्या करेगा, दे विल कंफर्म द प्राइसेस ऑन मेल, सो वी हैव टू मेंटेन द प्राइसेस इन मेंटेन कोटेशन। तो पहले हम वेंडर के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। उसके बाद वेंडर मेरे को प्राइसेस कंफर्म करेगा, तो वी हैव टू मेंटेन द प्राइसेस इन मेंटेन कोटेशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो भी वेंडर मेरे को प्राइसेस कंफर्म करेगा, वो हमको मेंटेन कोटेशन में प्राइसेस एंटर करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे हम प्राइस कंपेरिजन करेंगे। जो भी वेंडर मतलब, अगर 2 या 3 वेंडर, 3 वेंडर को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो तीनों वेंडर जो भी होंगे वो प्राइस कंफर्म करेंगे। उन प्राइसेस को हमने मेंटेन कोटेशन में एंटर कर दिया, इसके बेसिस पे प्राइस कंपैरिजन कर लेंगे। बेसिकली जैसे ही आप कोटेशन नंबर क्या होता है, जैसे ही रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजोगे ना, RFQ नंबर जनरेट होता है। और जैसे ही RFQ नंबर यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन में आप एंटर करोगे, तो तीनों के प्राइसेस शो हो जाएंगे कि ये वेंडर मेरे को इतने प्राइस में दे रहा है, ये वेंडर मेरे को इतने प्राइस में, थर्ड वन इस प्राइस में दे रहा है। तो वो असेंडिंग ऑर्डर में प्राइसेस होते हैं, तो हम उसके बेसिस से प्राइस कंपेरिजन कर लेंगे। अब जो भी वेंडर मेरे को सबसे कम प्राइस में देगा, उसको व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट द परचेज ऑर्डर। तो जो भी मेरे को सबसे कम प्राइस में देगा, उसको हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर देंगे। तो for the creation of purchase order we have to use the code as ME21N। ME21N से क्या करते हैं, हम वेंडर को परचेज ऑर्डर देते हैं। परचेज ऑर्डर मतलब कि परचेज ऑर्डर में क्या क्या होता है, बेसिकली फर्स्टली कौन सा मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, कितना क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, कितने प्राइस पे परचेज कर रहा हूँ। तो फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट द परचेज ऑर्डर। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वेंडर क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर कराएगा। तो वी हैव टू रिसीव द गुड्स। हम पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट करा कि मेरे को ये मटेरियल इतना क्वांटिटी इतने प्राइस में चाहिए, प्राइस वही है जो कि आपने कंफर्म करा हुआ था एट द टाइम ऑफ मेंटेन कोटेशन। जब हमने RFQ भेजा था, उसके बाद आपने प्राइसेस कंफर्म करा था, तो वो प्राइसेस वही रहेगा। जो भी प्राइसेस कंफर्म करेंगे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि बेसिकली ये जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है कि ये जो प्राइसेस हैं वो किस टाइम से किस टाइम तक ही वैलिड रहेंगे। ठीक है। तो उसमें उसके बेसिस पे हमने परचेज ऑर्डर दिया। आफ्टर गिविंग द परचेज ऑर्डर वी हैव टू रिसीव द गुड्स। हमने फिर गुड्स को रिसीव कर लिया जब वेंडर ने डिलीवर कराया। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनवॉइस वेरिफिकेशन करेंगे। इनवॉइस वेरिफिकेशन मतलब कि वेरीफाई करेंगे कि जो हमने परचेज ऑर्डर दिया था उसी के अकॉर्डिंग गुड्स रिसिप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। पता चला है यहाँ पे सपोज 10 क्वांटिटी हमने परचेज ऑर्डर दिया है, गुड्स रिसीव हो रहा है यहाँ पे 9 या 5। तो उसके बेसिस पे हमको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि अगर कम हो रहा है तो उसके बेसिस पे क्या रीजन है और कब रिमेनिंग गुड्स रिसीव होगा। ठीक है। तो ये हम वेरिफिकेशन करते हैं। जब सब कुछ वेरिफिकेशन ओके होगा, तो इसमें वेरिफिकेशन में ये भी होता है कि बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो क्वालिटी वाइज कैसा है। जब सब कुछ ओके होगा, देन ओनली यू हैव टू डू दी इनवॉइसिंग। इनवॉइस वेरिफिकेशन मतलब इनवॉइसिंग करना, तभी हम इनवॉइसिंग करेंगे। जैसे इनवॉइसिंग करेंगे, वी हैव टू चेक द बैलेंस ऑफ वेंडर। वेंडर का बैलेंस डिस्प्ले करेंगे FBL1N से, एंड मेक द पेमेंट टू द वेंडर। F-53 से पेमेंट कर देंगे वेंडर को। तो ये मेरा पूरा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है। तो ये RFQ पहले क्रिएट करेंगे,
वेंडर मेरे को प्राइसेस बताएगा तो हम मेंटेन कोटेशन प्राइसेस अपडेट करेंगे, इसके बेसिस पे प्राइस कंपेरिजन कर लेंगे। जो भी वेंडर सबसे कम प्राइस में देगा उसको हम परचेज ऑर्डर देंगे, इसके बेसिस पे गुड्स को रिसीव कर लेंगे, इनवॉइस वेरिफिकेशन करेंगे, वेंडर का बैलेंस चेक करेंगे, एंड देन वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द वेंडर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, राइट। तो ये मटेरियल मास्टर वाला अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नीचे का प्रोसेस है जो कि जीएसटी से रिलेटेड है ना, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और सभी होंगे तभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मेरा जीएल क्रिएशन का प्रोसेस होता है। ठीक, तो बेसिकली हमको दो जीएल क्रिएट करने हैं, एक तो इन्वेंट्री अकाउंट का असेट में जाएगा, एक मेरा जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट में जाएगा। बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जनरल एंट्री क्या होता है। देखो, जब हम परचेज ऑर्डर देते हैं तब हमारी कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती है। परचेज ऑर्डर बेसिकली मैनुअली, मतलब परचेज ऑर्डर एसएपी के थ्रू होता है लेकिन उसकी जनरल एंट्री पास नहीं होती है। जब हम गुड्स रिसीव करेंगे, बेसिकली ये हमारा FIMM इंटीग्रेशन वाला भी पार्ट है कि बेसिकली हम प्रोसेस जो कर रहे हैं ना, ये जो टी कोड्स हैं जो कि हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि ये टी कोड है परचेज ऑर्डर का क्रिएट करने का टी कोड है ME21N, गुड्स रिसीव करने का टी कोड MIGO है, इनवॉइसिंग का टी कोड MIRO है, राइट। तो ये सब टी कोड्स हैं। अब ये इन सब टी कोड्स से हम कभी भी जनरल एंट्री प्रोसेस नहीं करते हैं, हम ये सिर्फ प्रोसेस सिर्फ MM में करते हैं, और इसके अगेंस्ट में जो जनरल एंट्री पास होती है वो FI में पास होती है, वो ऑटोमेटिक पास होती है। उसके लिए हमको GL असाइन करना पड़ता है। जैसे हमने एसेट अकाउंटिंग आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट करा है क्या? एसेट अकाउंटिंग करा है क्या? मेगा एसेट अकाउंटिंग करा है क्या हम लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी सर, एसेट अकाउंटिंग किया है। किया है। तो जैसे ही वहाँ पे AO90 में जाके GL असाइन करते थे ना, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, परचेज ऑफ असेट, असेट ट्रांसफर, तो उसमें ऑटोमेटिक मेरी जनरल एंट्री पास होती थी FI में। हम प्रोसेस किस में कर रहे होते थे? असेट अकाउंटिंग में। लेकिन उसकी जो एंट्री जो पास हो रही थी वो FI में पास हो रही थी, जनरल एंट्री जो पास हो रही थी वो FI में हो रही थी। लाइक सेम in this also we have to process this create purchase order goods ship invoice notification vendor payment vendor का बैलेंस चेक। तो ये प्रोसेस हम SAP में करेंगे, और इसके अगेंस्ट में जितनी भी जनरल एंट्री होंगी वो हमारी FI में प्रोसेस होंगी। ये हम मटेरियल मैनेजमेंट MM में करेंगे, और इसके अगेंस्ट में जनरल एंट्री जो प्रोसेस होंगी वो FI में होंगी। तो जनरल एंट्री के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट टू GLs। ये सीधे हमने यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे जनरल एंट्रीज लिखी हुई है, जनरल एंट्रीज के नीचे बेसिकली दो GL क्रिएट करने हैं। एक तो हमारा GL जो क्रिएट होगा, GL जो क्रिएट होता है वो FS00 से क्रिएट होता है। दो GL क्रिएट करने हैं, एक तो इन्वेंट्री अकाउंट का एसेट में बनेगा, एक GRI क्लियरिंग अकाउंट लाइबिलिटीज में बनेगा। इन्वेंट्री अकाउंट एसेट में बनेगा तो हम क्या करेंगे, ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी पे टिक करना है, लाइन आइटम डिस्प्ले करना है। सॉर्ट की इसमें चेंजेस होगा। सॉर्ट की मतलब कि अभी तक की जो सॉर्टिंग ले रहे थे वो पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग ले रहे थे, लेकिन यहाँ जो सॉर्टिंग होगा वो 014 होगा। 014 मतलब परचेज ऑर्डर के नंबर के अकॉर्डिंग। हम जब क्रिएशन परचेज ऑर्डर करते हैं तो हर हर वेंडर के अगेंस्ट में एक परचेज ऑर्डर नंबर आता है, तो वो सॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग होगा, वो परचेज ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग होगा। एंड इन फील्ड स्टैक ग्रुप वी हैव टू डिफाइन हियर G006। G006 किसके लिए होता है? इन्वेंटरी अकाउंट या मटेरियल अकाउंट के लिए होता है। और हमको पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली पे टिक करना होता है। क्योंकि पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली पे टिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये प्रोसेस किस में करेंगे, MM में। और एंट्री इसके अगेंस्ट में MM के बेसिस पे जो एंट्रीज प्रोसेस हो मतलब पोस्ट होंगी वो हमारी FI में होंगी। तो इन्वेंट्री अकाउंट का जेल एसेट में क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे /FS00 GD78 यहाँ पे कंपनी कोड आ रहा है, वी हैव टू क्रिएट द जेल ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट जो कि मेरा एसेट में क्रिएट होगा। तो हमने यहाँ पे एसेट पे सेलेक्ट करा। इन्वेंट्री अकाउंट का जेल किससे बनेगा, 2,03,000 से क्रिएट होगा। तो क्लिक ऑन क्रिएट, एंटर द जेल अकाउंट नंबर एज 2,03,000, कंपनी कोड है GD78। यहाँ पे एसेट, इसका इम्पैक्ट मेरा बैलेंस शीट। किसका जीएल क्रिएट करें, वी आर क्रिएटिंग जीएल ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट। तो यहाँ पे एसेट लिया, इसका इम्पैक्ट मेरा बैलेंस शीट, इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, क्लिक ऑन कंट्रोल लेटर। इन कंट्रोल लेटर वी हैव टू क्लिक ऑन ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, लाइन आइटम डिस्प्ले। सॉर्ट की क्या होगा, 014, एंड इन क्रिएट बैंक ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू डिफाइन इट एज G006। G006 इज फॉर मटेरियल अकाउंट के लिए होता है, तो वी आर डिफाइनिंग द फील्ड लिस्ट ग्रुप है G006 जो कि मटेरियल अकाउंट के लिए होता है। एंड वी हैव टू क्लिक ऑन पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली, इस पर टिक करके कंट्रोल एस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट का जीएल बनाया है जिसमें हमने असेट में जाएगा। बेसिकली इन्वेंट्री इज रिलेटेड टू स्टॉक, स्टॉक मेरा क्या होता है, असेट में होता है, तो असेट का इम्पैक्ट मेरा बैलेंस शीट पे जाता है। वी ऑलरेडी नो, वी हैड क्रिएटेड जीएल ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट एंड इन कंट्रोल डेटा हमने यहाँ पे ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी पे करा, लाइन आइटम डिस्प्ले पे करा। सॉर्ट की 014 हो गया परचेज ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग।
And in create bank of interest, we have to define it as G006. G006 is for material account. And we have to click on post automatically only. तो हमको इस पर टिक करना होगा। जैसे मेरा ये इन्वेंटरी अकाउंट का जीएल एसेट में बन जाएगा, उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट जो कि मेरा लाइबिलिटीज में बनेगा। ठीक है। लाइबिलिटीज में बनेगा, यहाँ पे फील्ड से ग्रुप जो डिफाइन करना है वो G045 करते हैं। G045 इस पर जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट के लिए होता है। तो और जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू टैक्स एलिमेंट भी होता है, ये टैक्स से रिलेटेड होता है। तो हमको यहाँ पे टैक्स कैटेगरी भी डिफाइन करनी होगी एज ऑल टैक्स टाइप अलाउड। क्योंकि हम जो कभी भी गुड्स रिसीव करेंगे ना, तो उसमें टैक्स भी इन्वॉल्व होगा, तो हम उसके लिए यहाँ पे टैक्स कैटेगरी में ऑल टैक्स टाइप अलाउड वाला एक फील्ड लेंगे। बाकी आपको ऑलरेडी पता है, लाइन आइटम डिस्प्ले कर ही लेंगे, शॉर्ट की 014 ही रहेगा परचेज ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग। फील्ड लिस्ट ग्रुप इसके लिए अलग डिफाइन है, जैसे मटेरियल मटेरियल अकाउंट के लिए यहाँ पे जो फील्ड लिस्ट ग्रुप डिफाइन है वो G006 डिफाइंड है, तो हमने यहाँ पे फील्ड लिस्ट ग्रुप में G006 डिफाइन करा था। वैसे ही मेरा नेक्स्ट जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट के लिए वी हैव टू डिफाइन द फील्ड लिस्ट ग्रुप है G045। तो G045 टी कोड होता है फॉर डिफाइनिंग जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट। एंड वी हैव टू क्लिक ऑन पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली। ठीक, तो जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट हम लाइबिलिटीज में क्रिएट कर रहे हैं। तो 3 लाख तक जीएल बनाया, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वन न्यू जीएल बाई 3 लाख 1, और जो कि हम जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट का बनाएंगे। तो क्लिक ऑन क्रिएट, एंटर द जीएल अकाउंट नंबर एज 3 लाख 1, कंपनी कोड इज दिस, टाइप और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लाइबिलिटीज, इसका इम्पैक्ट मेरा बैलेंस शीट। वी आर क्रिएटिंग जीएल ऑफ जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट। तो जस्ट डिफाइन here GR/IR क्लियरिंग अकाउंट, GRI clearing account, click on control data. In control data, we have to click on only balance in local currency, line item display. Sort की क्या होगा, 014 होगा, 014 मतलब परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग। एंड हियर इट इज आस्किंग फॉर टैक्स कैटेगरी, तो इन टैक्स कैटेगरी वी आर डिफाइनिंग इट एज ऑल टैक्स टाइप अलाउड। ये मेरा क्या हो रहा है, ऑल टैक्स टाइप अलाउड, तो इस पे हमने करा। तो ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी पे टिक कर दिया, लाइन आइटम डिस्प्ले कर दिया, सॉर्ट की मेरा 014 होगा, टैक्स कैटेगरी क्या होगा, ये ऑल टैक्स टाइप अलाउड होगा, क्योंकि हमारा जीआरआई रिलेटेड जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू टैक्स एलिमेंट, तो हमने यहाँ पे स्टार डिफाइन करा। एंड इन क्रिएट बैंक ऑफ इंटरेस्ट वी आर डिफाइनिंग इट एज G045। G045 किसके लिए होता है, जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट के लिए होता है। तो जस्ट डिफाइन इट एज G045 एंड वी हैव टू क्लिक ऑन पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली, इस पे हमको टिक करना है, कंट्रोल एस कर देना। जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो ये मेरा जीआरआई क्लियर अकाउंट का जीएल बन जाएगा। और ऐसे ही मैंने इन्वेंटरी अकाउंट का असेट में जीएल क्रिएट करा हुआ है। तो ये मैंने दो जीएल क्रिएट करे हैं, एक इन्वेंटरी अकाउंट का असेट में, एक जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट लाइबिलिटीज में। इसके बाद मेरे टोटल 6 जीएल और बनाने होते हैं, दिस इज रिलेटेड टू जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि टैक्स एलिमेंट मतलब कोई भी इन्वॉइसिंग करोगे तो आपका टैक्स जरूर चार्ज होगा। अगर विद इन द स्टेट होगा तो सीजीएसटी एचजीएसटी चार्ज होगा, और आउटसाइड द स्टेट होगा तो आईजीएसटी चार्ज होगा। तो जीएसटी के बारे में समझ लेते हैं। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितने टाइप का टैक्सेस होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के टैक्सेस होते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस मतलब स्टेट जीएसटी, आई मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक, सीजीएसटी एसजीएसटी कब चार्ज होता है, आईजीएसटी कब चार्ज होता है, तो विद इन द स्टेट सप्लाई होती है तो मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब कि जब विद इन द स्टेट सप्लाई होती है तो मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है। जब आउटसाइड द स्टेट होगा तो वहाँ पे इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा, मतलब आईजीएसटी चार्ज होगा। तो विद इन द स्टेट मेरा इंटर स्टेट सप्लाई होता है जिस पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है। आउटसाइड द स्टेट होगा वो मेरा इंटर स्टेट जीएसटी होगा, जहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा। मतलब आप यूपी में हो, अगर यूपी से ही परचेस कर रहे हो तो वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। लेकिन अगर आप यूपी में हो, स्टॉक परचेस कर रहे हो एमपी से या महाराष्ट्र से या कहीं साउथ से, कहीं से बैंगलोर एंगलोर से, कहीं से भी स्टॉक परचेस कर रहे हो, तो वहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, आउटसाइड द स्टेट हो रहा है, तो वहाँ पे आईजीएसटी चार्ज हो रहा है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, बेसिकली टोटल 6 जीएल क्रिएट करने हैं। 3 मेरे इनपुट के बनेंगे, इनपुट के लिए, और 3 मेरे आउटपुट के बनेंगे। इनपुट क्या होता है, खरीदते समय जो टैक्स लगता है, इनपुट मतलब खरीदते समय जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो मेरा इनपुट से रिलेटेड हो गए। आउटपुट मतलब क्या होता है, सेल करते समय जो टैक्स चार्ज होगा वो मेरा आउटपुट होगा। ठीक, तो हमारे ये 3 इनपुट के जेल बनेंगे, इनपुट सी जीएसटी एच जीएसटी आई जीएसटी, 3 मेरे आउटपुट के जेल बनेंगे। और टैक्स कैटेगरी इसमें एक और चीज डिफाइन करनी है, जैसे हमने यहाँ पे टैक्स कैटेगरी में स्टार डिफाइन करा था ना, दैट इज रिलेटेड टू जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट। वैसे ही मेरा जब हमारे इनपुट के बनेंगे तो इनपुट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन डिफाइन करेंगे, लेस देन इज फॉर इनपुट और ग्रेटर देन इज फॉर आउटपुट। तो हमको नॉर्मल जीएल बनाना है, लाइबिलिटीज में बनाना है, क्योंकि दिस इज टैक्स, तो हमारे सब लाइबिलिटीज में बनेंगे। और 3 मेरे इनपुट में बनेंगे, इनपुट सी जीएसटी एच जीएसटी आई जीएसटी। और फिर 3 मेरे आउटपुट में बनेंगे, आउटपुट सी जीएसटी एच जीएसटी आई जीएसटी। इनपुट में लेस देन डिफाइन करेंगे, आउटपुट में ग्रेटर देन डिफाइन करेंगे, G001 डिफाइन करके करेंगे। तो हम यहाँ पे लाइबिलिटीज का जीएल क्रिएट करें 3 लाख 2 से। तो हम यहाँ पे क्लिक ऑन क्रिएट, एंटर द जीएल अकाउंट नंबर एज 3 लाख 2,
लाइबिलिटीज, इसका इम्पैक्ट मेरा बैलेंस शीट, वी आर क्रिएटिंग जीएल ऑफ इनपुट सीजीएसटी, input CGST, input CGST. Click on control data. In control data, we have to click on only balance in local currency, line item display. Sort की क्या होगा, 001 ले लेंगे यहाँ पे, नॉर्मल बनाएंगे जेल। सिर्फ हमको टैक्स कैटेगरी डिफाइन करना पड़ेगा, तो इनपुट के लिए हम यहाँ पे लेस देन लेंगे, आउटपुट के लिए ग्रेटर देन लेंगे। तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया, ठीक, तो हमने ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी कर दिया, लाइन आइटम डिस्प्ले कर दिया, टैक्स कैटेगरी लेस देन ले लिया, सॉर्ट की 001 लिया, एंड इन क्रिएट बैंक ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू डिफाइन हियर G001, जो कि मेरा जनरल अकाउंटिंग के लिए होता है। कंट्रोल एस करेंगे तो ये मेरा इनपुट सीजीएसटी बन जाएगा। जैसे ही मेरा इनपुट सीजीएसटी बनेगा, बिल्कुल सेम लाइक सेम वी हैव टू क्रिएट टू मोर जीएल ऑफ इनपुट स्टेट जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी या आई जीएसटी आप बोल दो। तो ये सेंट्रल जीएसटी, ये स्टेट जीएसटी, ये आई जीएसटी। वैसे आउटपुट के सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आई जीएसटी करके ये मेरे को टोटल 6 जीएल क्रिएट करना है। तो अब हमको स्टेट जीएसटी का जीएल क्रिएट करना है, तो हम इसी जीएल को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सबके सब लाइबिलिटीज में बनेंगे। चेंजेस क्या होगा, सिर्फ नेम में चेंजेस होगा, और टैक्स कैटेगरी जब इनपुट के हैं तो हमको इनपुट ही लेना पड़ेगा लेस देन। तो हम इसी जीएल को 3,03,000 में कॉपी कर लेते हैं, तो सेलेक्ट करा, कॉपी करा, यहाँ पे 3,03,000 डाला, एंटर करा, यहाँ पे इनपुट एस जी एस टी, एस जी एस टी, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। कंट्रोल एस करेंगे तो ये मेरा इनपुट एस जी एस टी का जेल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही मेरा इनपुट आई जी एस टी का जेल क्रिएट होगा, तो सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं इसको, 3,04,000 में। यहाँ पे इनपुट आई जी एस टी आएगा, तो इनपुट आई जी एस टी, कंट्रोल एस करेंगे तो ये मेरा इनपुट आई जी एस टी बन जाएगा। तो हमने टोटल 3 जीएल बनाया है, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी, इनपुट आई जी एस टी। ऐसे ही मेरे टोटल 3 रिमेनिंग जीएल बनेंगे, आउटपुट सी जी एस टी, एच जी एस टी, आई जी एस टी, और सिर्फ यहाँ पे टैक्स कैटेगरी डिफाइन करेंगे, वो ग्रेटर देन डिफाइन करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने लेस देन डिफाइन करा हुआ है ना, वैसे ही हम यहाँ पे ग्रेटर देन डिफाइन करेंगे, और ये मेरे लाइबिलिटीज में ही क्रिएट होंगे। तो अब हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा 3,05,000 से आउटपुट सी जी एस टी। तो क्लिक ऑन क्रिएट, यहाँ पे 3,05,000 से क्रिएट करेंगे। लाइबिलिटीज, इसका इम्पैक्ट मेरा बैलेंस शीट, किसका जीएल क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग जीएल ऑफ आउटपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी। क्लिक ऑन कंट्रोल डेटा, कंट्रोल डेटा में ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, लाइन आइटम डिस्प्ले, टैक्स कैटेगरी में वी हैव टू डिफाइन हियर एज ग्रेटर देन। तो हमने ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी पे टिक कर दिया, लाइन आइटम डिस्प्ले कर दिया, टैक्स कैटेगरी हमने यहाँ ग्रेटर देन डिफाइन करा। सॉर्ट की क्या होगा, 001 होगा, 001 इज रिलेटेड टू पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग, एंड इन क्रिएट बैंक ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू डिफाइन हियर एज G001, जो कि मेरा जनरल अकाउंटिंग के लिए होता है। कंट्रोल एफ कर देंगे तो ये मेरा आउटपुट सीजीएसटी बन जाएगा। सिर्फ चेंजेस क्या हुआ है, पहली बात तो आउटपुट सीजीएसटी हमने डिफाइन करा है, और ये जो टैक्स कैटेगरी डिफाइन करा है वो मेरा आउटपुट वाला लिया हुआ है ग्रेटर देन। इसी जेल को कॉपी करेंगे, वो आउटपुट स्टेट जीएसटी, आउटपुट आई जीएसटी में, तो हमने इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे 3,06,000 में, 3,06,000 एंटर, आउटपुट एस जी एस टी, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, क्रिएट बैंक ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ सेम रहेगा। कंट्रोल एस कर देंगे तो ये मेरा आउटपुट एस जी एस टी बन गया। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट जो बनेगा वो आउटपुट आई जी एस टी बनेगा, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं 3,07,000 में, आउटपुट आई जी एस टी, आई जी एस टी, आई जी एस टी, कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो ये मेरा थर्ड जीएल भी बन जाएगा, आउटपुट आई जी एस टी। तो टोटल मैंने 3 जीएल बनाए, इनपुट सी जी एस टी, एच जी एस टी, आई जी एस टी, आउटपुट के 3 जीएल बनाए, आउटपुट सी जी एस टी, एच जी एस टी, आई जी एस टी। और उससे पहले हमने 2 जीएल और बनाए थे, दैट इज इन्वेंट्री अकाउंट का जो एसेट में बनाया था, वैसे ही मेरा जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट का लाइबिलिटीज में बनाया है। तो टोटल ये 6 जीएल बनाए और 2 जीएल और बनाए। अब जितने भी जीएल बनाए हैं ना, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू असाइन ऑल दीज जीएल इन टी कोड OB40। तो OB40 एक टी कोड है जिसमें कुछ अकाउंटिंग कीज डिफाइन है। ये कुछ अकाउंटिंग कीज डिफाइन है, मतलब कि जैसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी के लिए कुछ अकाउंटिंग कीज डिफाइन है, जैसे कि ZIC फॉर इनपुट सीजीएसटी, ZIS फॉर इनपुट स्टेट जीएसटी, ZIA फॉर इनपुट इंटर स्टेट जीएसटी, वैसे OCC, OSK, OIL, ये सब कुछ अकाउंटिंग कीज डिफाइन है। तो इसी में जाके बस मेरे को जीएल असाइन करना है, जिसका टिकट क्या होता है, OB40। तो हमने यहाँ पे /OB40 एंटर, ठीक, यहाँ पे ZIC, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ सबसे पहले क्या करना है, ZIC में मेरे को इनपुट CGST असाइन करना है। तो Z कहाँ आएगा, सबसे नीचे आएगा, ZIC, ये आ रहा है ना, ZIC इनपुट CGST, डबल क्लिक ऑन दिस, एंटर।
एंड कंट्रोल एस, कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल एस करके ये जो इनपुट सीजीएसटी का जीएल जो होगा वो हम यहाँ पे असाइन करेंगे। सर्च एंटर एंड असाइन द जीएल ऑफ इनपुट सीजीएसटी। तो हमने ये इनपुट सीजीएसटी का जीएल यहाँ पे असाइन करके एंटर कर दिया। ऐसे ही मेरा क्या होगा, जेड आई एस से इनपुट स्टेट जीएसटी डिफाइन करेंगे, तो एक स्टेप बैक जाएंगे। यहाँ पे जेड आई एस, ये मेरा जेड आई एस आ रहा है, ये मेरा किसके लिए होता है, इनपुट स्टेट जीएसटी के लिए होता है। डबल क्लिक ऑन दिस, कंट्रोल एस एंड असाइन द जीएल ऑफ इनपुट स्टेट जीएसटी। सर्च एंटर, assign the GL of input state GST, कंट्रोल एस एंटर। नेक्स्ट मेरा जो जीएल बनेगा वो जेड आई आई में इनपुट इंटर स्टेट जीएसटी असाइन होगा, तो एक स्टेप बैक जाएंगे। जेड आई आई, ये जेड आई आई आ रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, इनपुट इंटर स्टेट जीएसटी के लिए होता है। डबल क्लिक ऑन दिस, कंट्रोल एस एंड असाइन द जीएल ऑफ इनपुट इंटर स्टेट जीएसटी। तो हमने यहाँ पे इनपुट आई जीएसटी असाइन कर दिया। तो हमने दो, 3 जीएल तो टोटल इससे डिफाइन कर दिए। ऐसे ही मेरे आउटपुट में ओ सी सी ओ एस की ओ आई एल करके ये कुछ अकाउंटिंग केस डिफाइन है, उसमें जाके हम जीएल असाइन करेंगे। तो ओ सी सी कहाँ आएगा, एक स्टेप बैक जाना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, तो ओ यहाँ पे अप्रोक्स आएगा। एम एन ओ क्या है, ओ सी सी। ये देखो ओ सी सी आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखे आ रहा है, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी। डबल क्लिक ऑन दिस, कंट्रोल एस एंड असाइन द जीएल ऑफ आउटपुट सेंट्रल जीएसटी। तो हम यहाँ पे आउटपुट सेंट्रल जीएसटी का जीएल असाइन कर देंगे। सर्च एंटर, यहाँ पे आउटपुट सेंट्रल जीएसटी आएगा, कंट्रोल एस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे चेंजेस हैज बीन सेव्ड, मतलब आउटपुट सेंट्रल जीएसटी का हमने जीएल असाइन कर दिया। ऐसे ही मेरा जो नेक्स्ट असाइन होगा वो ओ एस के में आउटपुट स्टेट जीएसटी असाइन होगा, तो एक स्टेप बैक जाते हैं। ओ एस के, ये ओ एस के आ रहा है, ये मेरा किसके लिए होता है, आउटपुट स्टेट जीएसटी के लिए होता है। डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे एंड असाइन द जीएल ऑफ आउटपुट स्टेट जीएसटी। सर्च, टिक, आउटपुट स्टेट जीएसटी असाइन करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो मेरा आउटपुट स्टेट जीएसटी में ओएस के में आउटपुट स्टेट जीएसटी भी असाइन हो गया। नेक्स्ट मेरा आएगा ओ आई एल, जो कि मेरा आउटपुट इंटर स्टेट जीएसटी के लिए होगा, तो एक स्टेप बैक जाएंगे। ओ आई एल, ये ओ आई एल करके आ रहा है, ये मेरे किसके लिए होता है, आउटपुट इंटर स्टेट जीएसटी। डबल क्लिक ऑन दिस, कंट्रोल एस एंड असाइन द जीएल ऑफ आउटपुट इंटर स्टेट जीएसटी। कंट्रोल एस एंटर। तो हमने क्या करा, पहले ये टोटल 6 जीएल क्रिएट करे थे, उसको हमने OB40 पे जाके ये जीएल असाइन कर दिए। अब हमने दो और जीएल क्रिएट करे थे, दैट इज ऑफ इन्वेंटरी अकाउंट और जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट। इन्वेंटरी अकाउंट का एसेट में, जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट का लायबिलिटीज में। तो ये जो दो जीएल बनाए हैं ना, इन दोनों को हमको नेक्स्ट वाले रिपोर्ट मतलब कि OBYC में जाके हमको असाइन कर देना चाहिए। OBYC में जाके BSX में और WRX में जाके हमको इन्वेंटरी अकाउंट और जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट का जीएल असाइन कर देना चाहिए। तो हमको टिकोड इज OBYC, तो हमने यहाँ पे स्लैश एन OBYC, ठीक, यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्वेंटरी पोस्टिंग के लिए क्या आता है, BSX आता है। BSX पे हम ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन है, उसमें हमको डिफाइन करना पड़ेगा जो भी हमने इन्वेंटरी पोस्टिंग का जीएल डिफाइन करा हुआ है। तो हम यहाँ पे BSX डिफाइन करेंगे, ये मेरा आ रहा है इन्वेंटरी पोस्टिंग। तो यहाँ पे डबल क्लिक करा, एंटर करेंगे। इट इज आस्किंग फॉर द वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन वैल्यूएशन क्लास, वी हैव टू क्लिक ऑन बोथ दिस टू ऑप्शन, कंट्रोल एस। वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन जो होगा वो एक कोई भी सिंगल आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे हैं वो हम यहाँ पे एक्स करके एक सिंगल कैरेक्टर डिफाइन कर दे रहे हैं। एक्स, एक्स कहाँ पे डिफाइन करा होगा, यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया आता है, वहाँ पे अगर एक्स डिफाइन करा है, यहाँ पे ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया, जिसका डिकोड क्या होता है, OMWD। इसमें पोजीशन पे जाके अपने कंपनी कोड डिफाइन करके एक सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करना होता है। जो भी सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करेंगे ना, उसी को हम आगे चल के जब हम जीएल असाइन करेंगे ना, तो वो ही सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हम वहाँ पे अगर एक्स डिफाइन करेंगे, अभी हमने वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप नहीं करी हुई है, हम यहाँ पे एक्स डिफाइन कर दे रहे हैं, और यही एक्स वहाँ पे जब नेक्स्ट क्लास में जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेप करेंगे तो वहाँ पे सिंगल कैरेक्टर एज एक्स ही लेंगे।
नहीं, इट इज आस्किंग फॉर वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास किसके लिए होता है? वैल्यूएशन क्लास रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट सबके लिए अलग अलग होता है। वैसे ही फिनिश प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो वैल्यूएशन क्लास होता है वो 7920 होता है। 7920 किसके लिए होता है? फिनिश प्रोडक्ट के लिए, कि हम लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, लैपटॉप मेरा एक फिनिश प्रोडक्ट है, तो उसके लिए जो वैल्यूएशन क्लास होगा वो 7920 होगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास 79 एक्स डिफाइन करा, वैल्यूएशन क्लास 7920, and here we have to assign the GL of inventory account. So we are assigning GL of inventory account. इन्वेंट्री अकाउंट तो हमने यहाँ पे एक्स डिफाइन करा, यहाँ 7920, यहाँ पे अकाउंट इन्वेंट्री अकाउंट डिफाइन करा। कंट्रोल एच करके एंटर प्रेस कर दिया। जैसे एंटर प्रेस करा, चेंजेस हैज बीन मेड। तो ये मेरा BS6 के लिए असाइन करने के लिए हो गया। ऐसे ही मेरे को एक और GL असाइन करना है, दैट इज ऑफ GRI क्लियरिंग अकाउंट, जो कि हमने क्रिएट करा हुआ है, वो हमारा WRX में असाइन होगा। उसमें भी सेम करना है, एक्स एज अ वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन डिफाइन करना है, वैल्यूएशन क्लास 7920 होगा, और अकाउंट में क्या आएगा? GRI क्लियरिंग अकाउंट, जो हमने GL असाइन करा हुआ है। तो हम एक स्टेप बैक जाते हैं। क्या लेना है हमको? अकाउंटिंग की लेना है WRX। तो हम यहाँ पे एक स्टेप बैक गए, WRX यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये मेरा WRX आ रहा है, WRX इज फॉर GRI क्लियरिंग अकाउंट। डबल क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन, वैल्यूएशन क्लास, इन दोनों पे टिक करना, वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन एंड वैल्यूएशन क्लास, कंट्रोल एफ करेंगे। वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन में एक सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, तो एक सिंगल कैरेक्टर एज एक्स डिफाइन कर दिया। वैल्यूएशन क्लास में क्या डिफाइन करेंगे? 7920 डिफाइन करेंगे। 7920 इज फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड इट इज आस्किंग फॉर अकाउंट, तो इन अकाउंट वी आर डिफाइनिंग इट एज GRI क्लियरिंग अकाउंट, GRIR क्लियरिंग। तो हमने यहाँ पे एक्स डिफाइन करा, यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास 7920 एंड अकाउंट में GRI क्लियरिंग अकाउंट डिफाइन करा। कंट्रोल एस करके एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, चेंजेस हैज बीन मेड, तो मेरे दोनों GL असाइन हो गए। एक मैंने बेसिक्स पे इन्वेंट्री पोस्टिंग में, बेसिक्स में एक इन्वेंट्री पोस्टिंग में GL असाइन करा था, इन्वेंट्री पोस्टिंग का बेसिक्स में असाइन करा। प्लस ही मेरा GRI क्लियरिंग अकाउंट का जो GL था वो WRX में एक फील्ड में हमने डिफाइन कर दिया। उससे पहले हमने क्या करा था, कुछ हमने GST के GL बनाए थे, टैक्स से रिलेटेड थे। उनको क्या करा, ये कुछ अकाउंटिंग कीज बनी थी, ZIC, ZIA, ZII, OCC, OSQIL, यहाँ पे जाके हमने ये सब अकाउंटिंग कीज असाइन कर दी। कोई डाउट इसमें यहाँ तक? तो यहाँ तक कि मैंने कवर करा हुआ है, राइट। उससे पहले मटेरियल मास्टर हमने करा नहीं है, मटेरियल मास्टर को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक, यहाँ से मटेरियल मास्टर ये मेरा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, तो यहाँ से मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सभी ज्वाइन कर लेंगे तब। मेगा इसमें यहाँ तक कोई डाउट? नो सर।